خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ جب کوئی ایماندار اور خاص کر خدا کا کوئی خادم کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے یا کسی گھرانے میں تعزیت کی غرض سے یا پرسہ دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یقیناً وہ تسلی کے چند کلمات کہتا ہے۔ اگر وقت ہو تو وہ شاید خدا کے کلام میں سے بھی چند باتیں گھرانے کی تسلی کے لیے یا مریض کی تسلی کے لیے کر دے، اور آخر میں وہ اس مریض کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی بعین ہی ایسا ہی کیا۔ جس دن خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہونا تھا، اس سے پہلے والی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تسلی دی۔ اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کو روح القدس کی نوید دی اور یہ بتایا کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ خلا، وہ کمی جو میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ اس کو پر کر دے گا۔ حتیٰ کہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 16ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس میری موجودگی کو تم میں گارنٹی کرے گا۔ میں روح القدس کے وسیلہ سے تمہارے درمیان رہوں گا۔ اور پھر آج ہم دیکھیں گے کہ جب یہ سب باتیں ہو چکی تو خداوند یسوع مسیح ایک دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا درج ہے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب میں۔ اس دعا کے 3 بڑے حصے ہیں۔ شروع میں خداوند یسوع مسیح اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ان 11 شاگردوں کے لیے جو ان کے ساتھ تھے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کو یسوع مسیح کی ہائی پریسٹلی دعا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک سردار کاہن کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے جو دعا کی۔ دوستو، آج ہم ایک بڑے انوکھے مقام پر جانے لگے ہیں۔ آج یسوع مسیح کے ساتھ ہم پاک ترین مکان میں جائیں گے، یعنی ہولی آف ہولیز میں جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیکل کا مرکزی مقام ایک کمرہ تھا جس کو 2 حصوں میں ایک پردے کے ذریعے سے تقسیم کیا گیا تھا۔ پردے کے پیچھے کا جو علاقہ تھا اس کو پاک ترین مکان کہا جاتا تھا، جہاں پر عہد کا صندوق رکھا رہتا تھا، اور اس عہد کے صندوق کے اوپر 2 کروبیوں کے درمیان خدا کی کفارہ گاہ تھی، یعنی وہ مقام جہاں خود خدا بیٹھا کرتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے درمیان خدا کی حضوری کا، اس کی موجودگی کا نشان تھا۔ پردے سے آگے کا جو مکان تھا اس کو پاک مکان کہا جاتا تھا، جس میں بخوردان اور نظر کی روٹیوں کی میز اور ایک شمعدان رکھا رہتا تھا، اور کاہن یہاں تک جا سکتے تھے۔ لیکن پاک ترین مکان میں، جو کہ خدا کی حضوری کی آماجگاہ تھی، وہاں صرف سردار کاہن جاتا تھا، اور وہ بھی سال میں 1 دفعہ یوم کفارہ پر۔ وہ جن جانوروں کو قربان کرتا تھا ان کا خون لے کر پردے کے پیچھے پاک ترین مکان میں جاتا تھا، اور وہاں جا کر وہ امت کے گناہوں کے لیے معافی کا طلبگار ہوتا تھا، ان کے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا، اور پھر وہ اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس خون کے بدلے جو بہایا جا چکا ہے، تو اپنی قوم کے، اپنی امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سردار کاہن صرف سال میں 1 دفعہ جا سکتا ہے۔ یسوع میرا اور آپ کا سردار کاہن ہے۔ آج وہ میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کرنے جا رہا ہے۔
اس کو معلوم ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ اپنا خون بہائے گا اور صلیب پر اپنی جان دے دے گا، اور وہ اس خون کے عوض میری اور آپ کی نجات مول لے لے گا۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم خداوند یسوع مسیح کو عین پاک ترین مکان میں خدا کی حضوری میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں، جہاں پر وہ جھک کر دعا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس دعا کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک وہ دعا جو خداوند یسوع مسیح اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسری وہ دعا جو وہ اپنے شاگردوں کے لیے کر رہے ہیں، اور تیسری وہ دعا جو وہ رہتی دنیا کے ایمانداروں کے لیے کر رہے ہیں۔ عزیزو، یہ ایک جاری رہنے والی دعا ہے۔ یہ دعا آج بھی قائم ہے، کیونکہ آج بھی اس دنیا میں ایماندار موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں میرے اور آپ کے لیے دعا کر دی، اور جب تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا یہ دعا قائم رہے گی۔ یہ میرے اور آپ کے سردار کاہن کی دعا ہے۔ یہ دعا پورے 17ویں باب پر محیط ہے، جس کا شاید آج ہم کچھ ہی حصہ دیکھ پائیں، لیکن اس کا مجموعی تاثر حاصل کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے پورے 17ویں باب کی تلاوت ایک دفعہ سن لیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کلام مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں، تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔
जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा, और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं और वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ऐ आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, यीशु मसीह की दुआ जो अभी हमने पढ़ी उसमें एक चीज तवातर के साथ उभर कर सामने आ रही है। एक लफ्ज है जो बार बार हमारे सामने आया और वो है जलाल, खुदा का जलाल। जो तासुर, जो एक मजमूई तासुर हमें इस दुआ से मिला कि अपनी जात से बढ़कर, अपने शागिर्दों से बढ़कर और अपने ईमानदारों से बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को जिस चीज की फिक्र थी वो ये थी कि खुदा जलाल पाए, उसका नाम जलाल पाए। फोकस खुदा के जलाल पर है, और उस जलाल के लिए जो भी चीजें, जो भी रिसोर्सेज, जो भी वसाइल दरकार हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनका जिक्र करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दुआ के 3 बड़े हिस्से हैं। पहली 5 आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए दुआ कर रहे हैं, और ऐसा ही होता था। जब एक सरदार काहिन यौम कफारा पर जानवरों का खून लेकर उस पाक तरीन मकान में दाखिल होता था तो पहले वो अपने गुनाहों की मुआफी मांगता था, पहले वो अपने लिए शिफात करता था, अपने खानदान के लिए शिफात करता था, और उसके बाद वो फिर पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए शिफात करता था। मैंने आपको कहा था कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ पाक तरीन मकान में जा रहे हैं जहां पर वो शिफात करेंगे, और यीशु मसीह ने भी एक सरदार काहिन की तरह दुआ का आगाज अपनी जात से किया। पहली आयत में लिखा है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। दुआ के एक मानी बातें करने के भी हैं, और जब जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कलाम पाक में दुआ करते हुए देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि वो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हैं, यानी वो जिससे हम कलाम हैं वो उसकी तरफ अपनी आंखें उठाते हैं। लाजर की कब्र पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, और वहां भी लिखा है कि उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाकर ये दुआ की। हम यीशु मसीह को सलीब पर से भी दुआ करते हुए देखते हैं, जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, और उस मौके पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई। ये खुदावंद यीशु मसीह का वतीरा था कि जब कभी वो दुआ करते थे वो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाया करते थे।
खुली आंखों से वो आसमान की तरफ देखते थे और दुआ किया करते थे। और यहाँ पर भी यही लिखा है, यस्सु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा। तो अब शागिर्दों को, जब ये सारी बातें अभी हो रही थी शागिर्दों के साथ, जब खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स के वो सारे काम उनको गिनवाए जो रूहुल कुद्स आकर करेगा, तो उन बातों के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा ली। ये शागिर्दों के लिए इशारा होगा कि अब खुदावंद यीशु मसीह उनसे मुखातिब नहीं है, बल्कि अपने बाप से मुखातिब हैं। यस्सु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। मैंने पहले भी कहा, फोकस खुदा के जलाल पर है। यस्सु ने कहा वो घड़ी आ पहुंची, और हम पहले भी इस बात पर बहस कर चुके हैं कि ये कौन सी घड़ी है। ये क्रोनोस नहीं है, ये कायरोस है, ये खुदा का वक्त है। हमने जगह जगह देखा अनाजीली बयानात में कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी वो घड़ी नहीं आई। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 12वें बाब में जब कुछ यूनानी उन्हें ढूंढते हुए आए और खुदावंद यीशु मसीह तक ये इत्तला पहुंची, तो उन्होंने कहा कि वो घड़ी आ गई, और इस घड़ी से मुराद यस्सु की मसलूबियत थी। अब वो अपने बाप से क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने जिंदगी भर तेरा जलाल जाहिर किया, मैंने जो मौजज़ात किए उनमें तेरा जलाल जाहिर हुआ, मैंने जो तालीम दी उसमें तेरा जलाल जाहिर हुआ। आज के दिन तक मैं तेरा जलाल जाहिर करता रहा हूं। अब तू अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा हतमी तौर पर तेरा जलाल जाहिर करे। यानी वो जलाल जो खुदा को खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत से मिलने वाला था, वो हतमी जलाल होगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे हौसला दे, ताकि मैं उस घड़ी में तेरा वो जलाल जाहिर कर सकूं। तू अपने बेटे को सरफराज कर दे तो बेटा तेरा जलाल जाहिर करेगा। जिस तरह सारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के नाम को जलाल दिया, वैसे ही उनकी मौत के वसीले से भी खुदा को जलाल मिलने जा रहा था। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। दोस्तों, जब कभी भी हम खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में इंसान बनकर आने की बात करते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम की बात करते हैं, जब कभी भी हम खुदावंद यीशु मसीह के इंसान बनकर रहने की बात करते हैं, उसकी बशरियत की बात करते हैं, जब कभी भी हम उसके दुखों की, उसकी तकालीफ की, उसकी मसलूबियत की बात करते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो रज़ाकाराना तौर पर ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। ये जानना बहुत जरूरी है। ये कोई कंपल्शन नहीं थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए। वो अपनी जात में अलूहियत रखता था। उसको अपना मकाम छोड़कर दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। ये सब कुछ उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर किया। यहां लिखा है, तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है। वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में ये हमें बताते हैं। वो इंसान बन गया,
गुनहगार इंसान की सूरत इख्तियार कर ली और फिर वो मौत बर्दाश्त की जो एक लानती मौत थी, सलीबी मौत गवारा की, अपने आप को पस्त कर दिया, गुलाम की सूरत इख्तियार कर ली। लेकिन ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि उन पर कोई बोझ था या उन पर कोई जबरदस्ती थी। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ रज़ाकाराना तौर पर किया। और यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं, तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है। वो इख्तियार रखने वाली ज़ात थी, लेकिन उसने अपने आप को उस इख्तियार से खाली कर दिया और वो इस दुनिया में इंसान बनकर आ गया। तो जब कभी भी हम खुदावंद यीशु मसीह के बशरियत की बात करें, उसकी मसलूबियत की बात करें, उसकी मौत की बात करें, तो याद रखिएगा कि ये सब उसने रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटरली किया। और वो क्यों किया? ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी अता करे। पहले बाब में इस खत के दिबाचा में यूहन्ना रसूल ने हमें बताया कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हमने ये भी देखा था ये किस जिंदगी की बात हो रही है। ये मेरी और आपकी जिंदगी की बात नहीं हो रही, ये बायोस की बात नहीं हो रही, ये ज़ोए की बात हो रही है, ये हमेशा की जिंदगी की बात हो रही है। उसको हर बशर पर इख्तियार हासिल था। वो अपनी मर्जी से बशर बन गया। और क्यों बना? ताकि वो दूसरे इंसानों को वो हमेशा की जिंदगी अता कर सके जो वो अपनी जात में खुदा होते हुए रखता था, वो ज़ोए जो वो अपने अंदर रखता था। यसु ने बाप से क्या कहा? मेरा जलाल जाहिर कर दे, मुझे जलाल दे ताकि मैं तुझे जलाल दे सकूं। यसु अपने लिए क्यों जलाल मांग रहे हैं? इसकी पहली वजह हमें दूसरी आयत में नजर आ गई कि वो इख्तियार रखने वाले हैं, वो अपनी जात में खुद खुदा हैं, इसलिए वो जलाल उनका है। उस जलाल को रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने पसे पुश्त डाले रखा, उसको छुपाए रखा, कैमोफ्लाज किए रखा। और कुछ ही देर के लिए उन तीन खुशकिस्मत शागिर्दों ने यानी याकूब, यूहन्ना और पतरस ने वो जलाल देख लिया जब बशरियत का पर्दा आगे से हट गया और जलाली यस्सु उनके सामने आ गया। वो जलाल उसी का है, लेकिन उसने रज़ाकाराना तौर पर उसको कुछ अरसे के लिए पसे पुश्त डाल दिया। और उसकी दूसरी वजह क्यों है, वो क्यों ये जलाल चाहते हैं, वो हमें चौथी आयत में मिलती है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। मुझे जलाल दे क्योंकि वो जलाल मेरा है। मुझे जलाल दे कि जो काम करने के लिए तूने मुझे इस दुनिया में भेजा था वो काम मैंने मुकम्मल कर दिया और कल वो काम मुकम्मल होने जा रहा है। कल मैं सलीब पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, फिदिये का, कफारे का, नजात का सारा काम पूरा हो जाएगा और उसके वसीले से आए बाप तेरा नाम जलाल पाएगा। इसलिए मैं अपने लिए अपना जलाल मांग रहा हूं। मुझे जलाल दे ताकि मैं तुझे जलाल दे सकूं। वो जलाल जो मेरा था वो मुझे दे दे। वो जलाल जो मैंने अपने काम को पूरा करने के वसीला से अब जिसका मैं हकदार हो गया हूं, वो जलाल तू मुझे दे दे। दोस्तों, तीसरी आयत मैंने कसदन छोड़ दी है, मैं उसकी तरफ दोबारा आऊंगा। 5वीं आयत में लिखा है, और अब आए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया के पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। वो जलाल मेरा था,
मैं अज़ल से तेरे साथ वो जलाल रखता रहा, अब मुझे दोबारा जलाली बना दे, क्योंकि मैं अपना काम मुकम्मल करके तेरे पास वापस आ रहा हूं। और वो जो सबसे अहम आयत बीच में से छोड़ दी थी मैंने, आइए उसकी तरफ वापस चलते हैं। मेरी मुराद तीसरी आयत से है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा, मैं अपना जलाल छोड़कर इसलिए आया था कि लोग हमेशा की जिंदगी पाएं। और हमेशा की जिंदगी क्या है? कि तुझे जाना जाए, तुझे खुदा माना जाए, और तेरे साथ मुझे भी जान लिया जाए। यस्सु कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? खुदा का आखिरी मुकम्मल और हतमी मुकाशफा मैं हूं। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह कह चुके हैं, मैं और बाप एक हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ये भी कह चुके हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैंने खुदा का हतमी मुकाशफा, तेरा हतमी मुकाशफा आए बाप लोगों तक पहुंचा दिया, जिसके वसीले से वो तुझे जान जाएंगे। और जब तुझे जान जाएंगे और मुझे जान जाएंगे तो वो उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे जो मैं अपने अंदर रखता हूं, जो मैं लेकर आया हूं। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बाप को हम बेटे के बगैर नहीं जान सकते। यस्सु मसीह के वसीले के बगैर हम खुदा तक नहीं आ सकते, उसको नहीं जान सकते। और अगर हमने खुदा को नहीं जाना, यस्सु के मुकाशवा को कबूल नहीं किया, खुदा पर ईमान नहीं लेकर आए, यस्सु पर ईमान नहीं लेकर आए, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरे प्रोड्यूसर मेरे कान में ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने दुआ का सिर्फ वो हिस्सा देखा जो यस्सु मसीह से मुताल्लिक था। अभी और बहुत कुछ बाकी है। लेकिन याद रखिए कि खुदावंद यस्सु मसीह ने पहले अपने लिए दुआ की, लेकिन इस पूरी दुआ में हमें कहीं वो खुद नजर नहीं आया। वो तो वही मांग रहा है जो उसका है, लेकिन वो बाप को जलाल देना चाहता है। वो अपने लोगों को हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। व्हाट अ सेल्फलेस प्रेयर। खुदावंद ने जिंदगी दी तो अगले प्रोग्राम में हम इस दुआ के मजीद हिस्सों पर गौर करेंगे। हमसे राब्ता करें, हमें बताएं क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। हमें यह भी बताएं कि इस प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। और हाँ, बाइबल मुकद्दस या इंजील मुकद्दस का कोई नुस्खा आपको चाहिए तो उसके लिए भी अपना नाम और पता हमें लिख भेजें। खुदा हाफिज।